हेलो गाइस, हाउ आर यू। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं, राइट? तो हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं ऑन ऑन यूट्यूब एज वेल। तो काफ़ी यूजर्स ने बोला था कि सर आपने सिक्योरिटी का वीडियो स्टार्ट किया था और आपने बीच में ही उसे छोड़ दिया। वी हैव अ गैप्स फॉर द 1 year अप्रॉक्स, राइट? So just for that particular user we are creating the video for the security, right? And if you'd like to learn something, if you have any doubts, then you can ask me directly over the number which I have already shared with you. Okay, so in this course we will not cover anything related to like CCNA routing, CCNA security and CCNP security. We will only cover the things which is related to ASA and with the things which is related to the VPNs. Means in this course we will only cover ASA plus VPN, not anything related to the logs, syslog servers, SNMP servers. This thing I have already discussed in the previous video of the CCNA, and some things which is not discussed, tell me, I will create a separate video. But this series, this playlist will be only for the ASA firewall and the VPN, because nowadays there are huge of demand the guys which have experience in routing as well as firewall. Okay, so only this purpose I am going to create this video. Okay, so what the things we will cover in ASA firewall, the things we will cover like how, first thing, what is ASA, what is ASA, okay, how to use ASA, okay, and third thing is how to assign IP on ASA, ठीक है। उसके बाद फोर्थ थिंग इज राउटिंग ऑन ASA, फिफ्थ थिंग इज telnet and SSH on ASA, ये पांचवा होगा ना, इट्स फिफ्थ थिंग, राइट? सिक्स, ASA पे कैसे पॉलिसी बनाते हैं, लाइक ACL ऑन ASA, कैसे इस पे पॉलिसी बनाते हैं, इसे हम पॉलिसी कह सकते हैं, राइट? एंड द फोर्थ थिंग, सिक्स थिंग, सेवन थिंग, ठीक है। सेवन थिंग हम इस पे पढ़ेंगे नेटिंग। एट नंबर इस पे पढ़ेंगे हम नेट के बाद HA ऑन ASA, और नाइन्थ नंबर हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कैसे यूज़ होता है इस पे, ये वाले इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये ASA में कैसे होता है, और इसी बीच में काफ़ी कुछ आता है, जैसे आपका पैकेट ट्रेसर कैसे यूज़ होता है, ASP ड्रॉप कैसे चेक करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, दिस इज यू नो द टॉपिक, दिस इज ओनली हेडिंग, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी विल कवर अंडर दिस टॉपिक। MBF क्या होता है, उसके बाद आपका क्या नाम है इसका, फिक्सर प्रोटोकॉल कैसे कम, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी विल कवर इन दिस। ओके, देन वी विल स्टार्ट टू द VPNs। VPN कैसे यूज़ होता है, राइट? एंड मोस्टली आई विल कवर IPsec and SSL VPN, ओके, इन डिटेल्स। तो ये कोर्स कंटेंट एक तरह से मोटा मोटी है, जो चीज़ याद और आते जाते जाएगा उसको हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो कोई डाउट्स है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी।
ओके चलो है। हाँ नहीं नहीं देखिए, yeah, in HA we will discuss about the active and active standby. We will also discuss about the context, how we can divide our physical firewall into the multiple parts. We will already discuss in the context. Okay. Yeah, first of all I will start to context. Once the context will finish, then I will start to HA. Yeah, otherwise you cannot understand what is the meaning of active, right? Actually, active standby is same thing. Active is nothing. It is also a active standby. But what we are going to do in the active state, in active firewall, we will divide a context. We will divide the firewall into two logical firewalls, and one person will be the active for the first firewall, or second person will be same second C, like we have a context C1 C2. So what we will do, we will just create context C1 for active firewall and context C1 for standby for the passive firewall or secondary firewall, right? And same thing we will do the C2 for firewall 1. We will do, let me clear first, like we have ASA, okay, 1 and ASA 2. अभी ये क्वेश्चन आपको पूछना नहीं चाहिए, चलो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ये दो फायरवॉल है, व्हाट वी विल डू इन दिस केस, मैं दो कॉन्टेक्स्ट बना दूंगा C1 और C2, और यहाँ भी दो कॉन्टेक्स्ट बना दूंगा C1 C2, ठीक है। C1 के लिए बोल दूंगा कि ये एक्टिव है, और C2 के लिए बोल दूंगा ये स्टैंड बाय है। C1 के लिए इधर बोल दूंगा ये स्टैंड बाय है, और C2 के लिए जो है ये एक्टिव है। तो बोथ फायरवॉल में, इस फायरवॉल में C2 एक्टिव है और इस फायरवॉल में C1 एक्टिव है। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज एक्टिव। We will discuss in details with the practical in when I will start to active and stand up. Okay. So first thing is, what is ASA firewall? Why we use ASA firewall instead of router? We can create uh, a policy or ACL on router as well. So why we required ASA firewall? Because if you are talking about router have already works to provide the routing, right? Right. Router have already works to provide the routing, right? So, and there are lots of work, like they will check, router also check the L2 L3 and L4. And if we will give a separate work for the security also, तो आपके राउटर का जो CPU यूटिलाइजेशन होगा, दे विल गो टू हाई, राइट? ओनली फॉर द जस्ट, यही मेन पर्पस है। बाकी बोलता है स्टेटफुल स्टेटलेस, ये सब बकवास है। ये मेन पर्पस है राउटर को फायरवॉल में कन्वर्ट करने का, सॉरी सिक्योरिटी के लिए मेरे पास एक सेपरेट फायरवॉल लाने का मेनली कंसेप्ट यही है। सेकंड थिंग इज दिस कि ASA फायरवॉल में आपका स्टेटफुल एंड स्टेटलेस इंस्पेक्शन दोनों होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटफुल इंस्पेक्शन? दे दिस टर्म्स इज वेरी यूजफुल whenever you will go for a corporate line, like what is stateful and what is stateless. Stateful means whenever you will create a policy on a device, कुछ टर्म्स है, इसको देखो, like this is my box, okay, I am going to create a policy for this box. मैंने कोई इनसाइड नेटवर्क के लिए आई एन से आउट के लिए, इन से आउट के लिए मैंने कोई पॉलिसी बना दिया, ओके। ट्रैफिक जाएगा, जब रिटर्न आएगा वी रिक्वायर्ड अनदर पॉलिसी, इसके लिए मुझे एक और पॉलिसी चाहिए, आउट टू इन के लिए भी एक और पॉलिसी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई एंट्री है नहीं। वी हैव ओनली अ ACL टेबल, वी कैन चेक द पॉलिसी। दिस इज नॉन एज स्टेटलेस। ये क्या हो गया? स्टेटलेस मीन्स हमारे पास विदाउट एंट्री हम काम कर रहे हैं। अब स्टेटफुल में क्या होता है,
जब भी कोई ट्रैफिक इन टू आउट जाएगा, वेन एवर द ट्रैफिक विल बी गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, राइट, दे विल क्रिएट अ एंट्री. what they will do, they will create a entry and this entry will be saved into the connection table. तो कहाँ पे सेव हो जाएगा, एक कनेक्शन टेबल में. ओके, लाइक इन टू आउट ट्रैफिक इज allowed. Whenever this traffic for same IP will hit on this device on the box, they will check first of all the connection table. Yes, traffic is allowed for this entry and they will pass to the inside network. तो क्या करेगा, inside को पास कर देगा. So stateful और stateless में यही difference है. Stateful is only checking the table ACL. If the entry is matched, then they will allowed, otherwise they will denied it. Okay, but in stateful they will check connection table. In the connection table they will inspect L2 and L3 like source IP, destination IP, source port, destination port. This thing will be inspected into the stateful inspections. Okay, so mainly ASA work on stateful connections. mainly ASA किस पे काम करता है, stateful connections पे. Okay, this features is not in the router, but again जब हम इसके लिए सेपरेट डिवाइस बना सकते हैं फॉर द सिक्योरिटीज, तो मैं उस फीचर को राउटर पे इनेबल भी कर सकता हूँ. तो इट्स नॉट अ कंसर्न कि ये स्टेटफुल है, ये स्टेटलेस है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज राउटर. मेनली थिंग इज कि एक डिवाइस से आप सब कम करवा लोगे तो उस डिवाइस का सीपीयू बहुत ज़्यादा चला जाएगा. यदि आप सीपीयू भी बढ़ा दे रहे हो तब भी उसको प्रोसेस होने में मीन्स they will check like routing first, then they will check the security, then they will check the netting, right, and then they will check the some policies if you required policy map, route map, anything. Okay, then they will send the traffic. तो इस प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग जाता है. दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग टू वर्क इनटू द टू पार्ट्स. ये राउटर को बोल दिया कि तुम राउटिंग करो और फायरवॉल को बोल दिया कि तुम सिक्योरिटी करो. ओके, इससे पहले भी इसके काफ़ी फ्लेवर्स आए हैं, यदि आप पढ़ना चाहो तो यू कैन रीड. बट जैसे सबसे पहले तो ACL था इसका, ACL के थ्रू हम सिक्योरिटी करते थे. ACL के बाद आ गया आपका रिफ्लेक्सिव ACL, उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो. इससे भी नहीं हुआ तो आ गया आपका रिफ्लेक्सिव ACL से भी नहीं आया तो आ गया ZBF, जोनल बेस्ड फायरवॉल. ओके, और ZBF से भी नहीं हुआ जब सिक्योरिटी, देन वी यूज ACL, सॉरी ASA. और ये जो भी कंसर्न है, if you want to learn ASA or you would like to understand ZBF or reflexive ACL, then you need to learn ACL first. So first of all, for the firewall directly I would like to say one words only. For the firewall you have to sound knowledge in ACL, means you have to knowledge how to create policy and what rules and where we will apply the policy and which interface is suitable to apply the policy. You need understand this thing in the clear way. यदि आपको ये नहीं आता है कि हमें पॉलिसी कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, देन यू कैन नॉट ईजिली लर्न द फायरवॉल. यू कैन ओनली लर्न द थ्योरी एंड ऑल द थिंग्स, बट रियल में आप नहीं कर पाओगे. सो if you would like to learn ASA in the details way, in the deep dig, then you must to learn ACL first. तो ACL में आपको मेनली क्या करना है कि ACL में आपको स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड पढ़ लेना है. ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्सटेंडेड क्या होता है. उसके बाद आपको आप जब टॉड लेम्बे का CCNA का पुराना बुक खोलोगे, नया बुक तो मैंने देखा नहीं है, उसमें 20 से 25 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं. 20 to 25 प्रैक्टिकल्स वी हैव इन ASA, राइट. फॉर तो आपको वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है आपके GNS पे या आपके पैकेट ट्रेसर पे, देन यू कैन इजीली गेट टू नो हाउ टू अप्लाई
ठीक है, कि मुझे इनसाइड पे कब अप्लाई करना है, आउटसाइड पे कब अप्लाई करना है। देन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वेन एवर द ट्रैफिक, व्हेन वी हैव अप्लाई द ACL ऑन इन इंटरफेस, तो जब भी कोई ट्रैफिक आएगा तो व्हाट विल हैपन, दे विल फर्स्ट चेक द ACL टेबल एंड देन दे विल चेक द राउटिंग टेबल। और जब आउट पे जाएगा तो फिर क्या होगा, पहले वो राउटिंग चेक करेगा, देन ACL चेक करके उसको बाद दे देगा। तो ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएगा देन वेन एवर यू विल गो टू स्टडी इन ACL फॉर टॉड लैम्बे से पढ़ लेना। अदरवाइज वी हैव अ वीडियो इन CCNA, मैंने CCNA में ACL का वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अच्छा चलो, अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे दिस इज माय ASA फायरवॉल, राइट, दिस इज माय इनसाइड इंटरफेस, दिस इज माय इनसाइड इंटरफेस, दिस इज माय आउटसाइड इंटरफेस। जब भी कोई ट्रैफिक ASA के लिए आएगा, वेन एवर द ट्रैफिक कम्स फॉर द ASA ओनली, देन दिस इज नॉन एज, इस ट्रैफिक को हम कहेंगे ट्रैफिक विच इज फॉर द बस। किसके लिए आया ये ट्रैफिक, फॉर द बस। और जब भी कोई ट्रैफिक ASA के थ्रू जाएगा दूसरे इंटरफेस पे, दिस इज नोन एज थ्रू द बॉक्स, means the traffic which is for the ASA is known as for the box, and the traffic which is go through the ASA is known as through the box. And there are some basics terminology, ये तो बहुत ही easy है, but let me explain. Whenever a traffic hit on an interface is known as ingress interface, ingress. And whenever the traffic is out from the interface is known as egress interface. There are two things, ingress and egress. Ingress means traffic is coming on the interface, and traffic is outing on the interface is known as egress interface. Okay, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको यूज होगा ASA में। And there are state table, I have already discussed. In the state table, whenever the traffic will, stateful inspection के बारे में मैं बता ही दिया हूँ, let me explain again. कि ये यदि आपका कोई इंटरफेस है, ये कोई दूसरा इंटरफेस है, राइट, तो सपोज यू आर अलाउइंग दैट ACL फ्रॉम इन टू आउट, whenever the traffic will be go from the inside to outside, they will create a entry, means in to out traffic is TCP and the action is allowed. Okay, this entry will be present in the connection table. और जब इसके लिए रिस्पॉन्स आएगा, they will check the connection table first and then they will check the ACL table, and with the help of ACL table they will get to know action is allowed or not for the outside entry. If the action is allowed, they will pass to the traffic. Okay, so that is known as stateful inspection, and you can see that in the stateful inspection this is a TCP, that means we are inspecting L4 also, or in to out means IP also, source IP, destination IP, source port, destination port. Okay, and with the help of this IP plus L4 we are inspecting the traffic, right? So this is the basic things which we need to means learn, or which if you require then you have to learn. If you want to go in details then you can learn from the books also. तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है व्हाट इज ASA फायरवॉल, व्हाई वी यूज ASA, इसी में सब टॉपिक आ गया आपका स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, व्हाट इज स्टेटफुल एंड व्हाट इज स्टेटलेस, ठीक है। और सेकेंड सब टॉपिक मैंने वैसे ही बता दिया, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी विच आर यूज, इंग्रेस इग्रेस, थ्रू द बॉक्स, ओके।
So let's suppose this is my ASA firewall. Okay, this is my router and this is my cloud. This is my outside device. All are connected to each other. Okay, this is my inside network. This is my outside network. Okay, this is my R1, this is my ASA firewall, or this is my ISP service provider. This interface is like Z0 by 1 and this interface is like G0 by, okay, and the IP is for this interface is like 12.1.1.1/24 and the IP on firewall is 12.1.1.2/24. Okay, this is the IP of firewall. Okay, and IP we are using for the external networks is like 101.1.1/24/29 24 ही रहने दो यार, सबनेटिंग कर लियो भाई. अरे क्या हो गया और जा ही रहा है. 0/1 है और ये 0/0 है. यहाँ पे 12.1 IP दिया हूँ, 12.1.1.1. यहाँ पे 12.2 इट्स 12.2.2.2. यहाँ पे 101.1 दैट इज 101.1.1.1. इधर 101.2. ओके, ये IP यहाँ. तो बिफोर गोइंग टू हाउ, अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला था वो था कि कैसे हम किसी फायरवॉल को, हाउ टू ओपन द फायरवॉल, ओके, एंड हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस ऑन अ पर्टिकुलर फायरवॉल. तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम बेसिकली पढ़ लेते हैं सबसे पहला चीज़ कि फायरवॉल दिखता कैसे है. राइट, हार्डवेयर रिलेटेड टू फायरवॉल को हम थोड़ा पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कैसे फायरवॉल का हार्डवेयर कैसे काम करता है, कैसे दिखता है. राइट, ASA फायरवॉल. इंटरव्यू क्वेश्चन. ASA 5550, सॉरी, ठीक है. तो यही है आपका ASA मॉड्यूल. ऐसे फायरवॉल आपको दिखता है ऐसे. ठीक है, तो ये आपका ASA है.
अभी ये इसका बैक है, ASA फायरवॉल का ये बैक है, और ये वाला ASA फायरवॉल का आपका फ्रंट एंड है, राइट। सो दिस इज द पोर्ट, दिस इज अ पोर्ट विच इज़ यूज फॉर द फाइबर। यहाँ पे हम फाइबर लगा के, और ये भी फाइबर के लिए ही है। सपोज इस आपके पास SFP है तो ये पोर्ट के थ्रू आप SFP से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ डाटा पोर्ट्स जिसके थ्रू हम जो है डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टेड करते हैं। दिस इज अ कंसोल पोर्ट, राइट, इसके लिए हम कंसोल कनेक्टिविटी करते हैं। और दिस इज़ अ चैसी। अभी कोई चीज़ ख़राब हो गया जैसे फायरवॉल में, इस चैसी को हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा वो ठीक हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के इसमें एक कार्ड होता है, दिस इज़ नॉन एज लैंड कार्ड, इसको निकाल के इसमें लगा देते हैं, और दिस इज़ नॉन एज सुपरविजन कार्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल में दो सुपरविजन कार्ड होता है, सूप 1 एंड सूप 2। सुपरविजन कार्ड का यूज़ किया जाता है किसी भी फायरवॉल के प्रोसेस करवाने के लिए, सेम लाइक राउटर में जो सुपरविजन कार्ड होता है वैसे ही, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट पोर्ट क्या होता है ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ। तो इसमें मेनली मैनेजमेंट MGMNT पोर्ट का यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट एक्सेस के लिए, लाइक SSH, टेलनेट के लिए, कंसोल के लिए जो आप चाहते हो कि फिजिकल डिवाइस को कैसे लॉगिन करें, दैट इज़ कंसोल फिजिकल डिवाइस को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम साइट पे जाके, ओके। उसके बाद आपका जो होता है आपका एक SFP होता है, SFP के थ्रू फाइबर पोर्ट्स होता है जो 100 गीग 10 गीग का पोर्ट होता है, उतने उसके थ्रू आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन के लिए। ऐसे ही ईथरनेट पोर्ट होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हो आप डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन के लिए। इसमें लैन कार्ड होता है, जो लैन कार्ड का यूज़ आपको डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन के लिए यूज़ होता है ये कार्ड। और एक सूप कार्ड होता है, सुपरविजन कार्ड, जिस सुपरविजन कार्ड का यूज़ किया जाता है कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट, इट्स लाइक इसका ब्रेन हो गया, राइट। तो उसकी ब्रेन के लिए हम लाइक जैसे राउटिंग करेगा या सिक्योरिटी पॉलिसी होगा, सब कुछ का डिसीजन, सब कुछ का डाटा जो है आपका सूप में ही स्टोर हो गया। तो यदि आपका कोई लैन कार्ड डाउन हो गया तो उस लैन पे जितना कस्टमर है उतना ही इम्पेक्टेड होगा। बट यदि आपका कोई सुपरविजन कार्ड डाउन हो गया तो पूरा का पूरा डब्बा ही डाउन हो जाएगा, पूरा फायरवॉल इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फायरवॉल में जो आपका सीरीज़ है वो 5505, 55010, 5510, फिर 5515, 5520, 5520, देन सो ऑन ऐसे ही बढ़ते गया 5550, 5550, ठीक है। और न्यू जनरेशन फायरवॉल FTD भी अभी मार्केट में आ गया है, और ये भी धूम मचा रहा है मार्केट। तो ये सब सीरीज हैं, जो आप चाहो तो यू कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फायरवॉल एंड you can just search to the series of firewall and what is the basic difference between this 5505, 5510, 5515 and 5520, 5530 and 5550 में क्या क्या डिफरेंस है ये पता चल जाएगा। बेसिकली डिफरेंस इज फॉर द आपका मेनली होता है थ्रूपुट का, इन सभी में डिफरेंस किसका होता है, थ्रूपुट का। पोर्ट्स का, किसी में पोर्ट्स कम, लोअर सीरीज में पोर्ट्स कम होता है। मेमोरी का, ये कम प्रोसेस कर पाता है, और ज़्यादा सीरीज ज़्यादा। और कुछ फीचर्स का, उसमें तो ये बेसिकली क्या क्या थ्रूपुट है, क्या पोर्ट्स है, ये सब आप चाहो तो यू कैन स्टडी फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ASA, वहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो लेट सपोज कि आपको राउटर पे IP देना है, तो आप कैसे दोगे, go to the global config mode and what you will do, you will write command IP address 12.1.1.1 space 255.255.255.0 no shutdown, okay, and exit,
that is done. This is the way to provide the IP address on a router. Okay, now the question, how to provide IP address on firewall. अब फायरवॉल पे कैसे आईपी एड्रेस दोगे, राइट? सो बेसिकली द फायरवॉल इज डिवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी जोन. फायरवॉल को हम कैसे डिवाइड किए हैं? सिक्योरिटी जोन के हिसाब से. ओके, there are basically 3 security zone inside, there are basically 3 security zone. First one is inside, second one is outside, and third one is DMZ. Okay, and by default for inside security zone, चलो ये अभी बताएंगे, right? So basically firewall are divided into 3 security zone: inside, outside, and DMZ. But it's by default. If you would like to create another security zone, like I want to create a security zone for the server, so I would like to create 4 security zone like server. You can create. By default we have a 3 security zone: inside, outside, DMZ. But if you would like to create more security zone on the firewall, then you can create. It's depend upon your. Okay, and this security zone, till now कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ूँ, नहीं यहीं पे हैंग हो रहा है तो we will go for further. क्या? हाँ, यस, फायरवॉल जो होता है उसे हम सिक्योरिटी जोन के बिहाफ पे डिवाइड करते हैं, राइट? तो वी हैव अ 3 सिक्योरिटी जोन: inside, outside, DMZ. But if you would like to create more and more security zone, then you can create, like for example, you have a requirement security zone of server, then you can create security zone server, and you can define the security level as well. Okay, अभी इस सिक्योरिटी जोन को तो मैंने पढ़ लिया, बट व्हाई वी यूज दिस सिक्योरिटी जोन? अभी सिक्योरिटी जोन का यूज क्यों हो रहा है अभी वो पढ़ा ही नहीं, और सिक्योरिटी जोन हमने पढ़ लिया. तो बेसिकली सिक्योरिटी जोन ये डिफाइन करता है कि मुझे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी जोन में जो इंटरफेस या नेटवर्क है उसे कितना सिक्योर करना है. ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है? सिक्योरिटी लेवल को. किसको डिफाइन करता है ये? सिक्योरिटी लेवल को. दैट मीन्स which security zone must be a high security level, which must security zone will be a low security level. Means for which security zone we have to give more protections, and for which security zone we have to give low protections. That depend upon, that thing is defined upon, or that is depend upon the security level. Security level is a value, a numerical value, which the range of this security level is 0 to 100. सिक्योरिटी लेवल का रेंज कितना से कहाँ तक होता है? 0 से 100. बाय डिफॉल्ट फॉर इनसाइड सिक्योरिटी इज 100, एंड फॉर आउटसाइड सिक्योरिटी जोन इज 0. फॉर DMZ सिक्योरिटी जोन इज 50, right? And if you are creating any zone like server, then you can give anything between 0 to 100. It depend upon yourself and what the things are important and how much you would like to secure or protect to that particular zone. तो उसके बिहाफ पे आप कोई भी नंबर 0 to 100 के बीच में डिफाइन कर सकते हो. ओके, 100 मीन्स मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी जोन, सबसे ज़्यादा इस पे हमें करना है. 0 मतलब सबसे ज़्यादा कम, इस पे हमें ध्यान देना है. ठीक है,
for 100 we need to create more and more policy, more and more security things like for outside. इस पे लिए हमें कोई इतना ज़्यादा ध्यान है नहीं देना है, और DMZ 50-50 है, ठीक है। तो राइट, यहाँ तक कोई इशू है? चलो, so whenever you will align or assign IP address on a particular interface of a firewall or ASA, first you need to define security level of that interface. First of all, you need to define security level for that particular interface. First of all, you need to define security level of that a particular interface. For that one. Okay. Then you can assign IP. So first of all, what you have to do, like in the previous example I have already told, we have a router, okay, and a router is connected with the firewall, okay, a router is connected with the firewall, and this is my outside network, and give me a second, I have a call. Okay, so we have a firewall is connected on between this router, right? Okay, this is my, and let's suppose we are going to assign IP address on this interface. So first of all, what we have to define, we have to define a security level for this particular interface, okay. Then we have to define IP address, okay. ऐसा कोई भी कंसेप्ट राउटर में नहीं था, राउटर में जाओ डायरेक्ट IP एड्रेस डाल दो, बट इफ यू वुड लाइक to provide the IP address or assign the IP address on a particular firewall, first of all you need to define security level. After that you will define the IP address. So how to define the security level? Like first of all, command configure terminal interface GI 0/0 name if like 100 IP address 12.0.0.12.1.1.2 255.255.255.0. okay, then you have to define no shut, हाँ बाय डिफॉल्ट ये नो शट ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। CDP डिसेबल रहता है, CDP इज डिसेबल्ड। अभी एक भाई पूछ रहा है कि फायरवॉल पे CDP डिसेबल रहता है या इनेबल रहता है। CDP इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट ऑन द फायरवॉल, इट इज इनेबल्ड ओनली ऑन राउटर एंड स्विच, ओके। अभी ये नहीं बताऊंगा CDP क्या होता है, बस पढ़ लियो भाई जाके राउटिंग में, स्विचिंग में, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस GI 0/0, CDP का यूज़ किया जाता है मेरे डिवाइस से कितने डिवाइस कनेक्टेड है सिस्को को, उसको पता करने के लिए। सो CDP नेबर इज अ कमांड बाय विच यू कैन गेट टू नो हाउ मेनी सिस्को डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ माय सिस्को डिवाइस, हाउ मेनी सिस्को डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ माय सिस्को डिवाइस and which interface are using to connect that particular device. So with the help of
With the help of CDP, you will get to know the neighbor information and which interface is using to connect that particular neighbor. If the neighbor is a vendor Cisco, okay, वो यदि सिस्को का वेंडर या सिस्को का डब्बा है तभी आप पता कर सकते हो. एंड द कमांड इज शो CDP नेबर. बाकी डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है. यू वुड लाइक टू लर्न, यू कैन गो एंड लर्न. ओके, तो फायरवॉल पे आ जाते हैं. तो हाउ टू प्रोवाइड द IP एड्रेस ऑन अ पर्टिकुलर फायरवॉल. गो टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड, गो टू द इंटरफेस, देन यू हैव टू डिफाइन नेम इफ, देन यू हैव टू डिफाइन द IP एड्रेस ऑफ. ओके, this is the command you can, by which you can define the IP address on a firewall. This name if is defined the security level, and whenever you will define 100 they will create a security zone inside. Automatic inside के लिए जो है by default 100 created रहता है. If you will define the 0 or anything number except 100, वो outside बन जाएगा. If you would like to change the name, then you can change the name also. Security level name with the command you can change name also. Whenever you will go whenever you will do the practical, you will उसको हम practical में we will start in the practical and we will perform in practical. Then we will check how to define and how to change the name and all the things. So this is the things you need to learn. Okay. हाँ, ठीक है. ओके जी, तो इस कमांड से हम ऐसे डिफाइंड करते हैं. जैसे आप राउटर पे लाइक ये बेसिक्स मैं बता रहा हूँ कि क्या बेसिक्स डिफरेंस है राउटर के कमांड लाइन में और इसके कमांड फायरवॉल की कमांड लाइन में. कॉन्फ़िग टी में जाते हो तो क्या लिखा हुआ होता है, राउटर कॉन्फ़िग हैश, एंड यू वांट टू सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरफेस और यू वांट टू सी द IP ऑफ इंटरफेस, देन यू हैव टू डिफाइन डू शो IP int brief, राइट. डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ मीन्स जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा और यू वांट टू चेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रिविलेज मोड, देन यू हैव टू डिफाइन डू. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट होना पड़ेगा एंड इन द प्रिविलेज मोड यू कैन डिफाइन शो IP इंटरफेस ब्रीफ एंड यू कैन चेक द IP configurations on a particular interface. But in ASA आपको कुछ नहीं करना है. if you are in global configuration mode, if you are in privilege mode, then you can check the IP. So IP interface, you don't need to write command do. Okay, चलो नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ेंगे हम कैसे किसी राउट ASA फायरवॉल पे IP देते हैं, कैसे सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करते हैं, कैसे उसके नेम को चेंज करते हैं, कैसे सिक्योरिटी लेवल को चेंज करते हैं. ओके, सो दिस थिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक सिक्योरिटी में क्या क्या अप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंस्पेक्टेड रहता है, क्या क्या अलाउड होता है, क्या क्या नहीं होता है. फिर पढ़ेंगे ASA पॉलिसीज़ कैसे बनाया जाता है, जो चीज़ अलाउड नहीं होता है उसको अलाउड करने के लिए. ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे. कैसे कनेक्शन चेक करा जाता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. चलो बाय.